Yes, students. Now we have to start with chapter number 4, that is reproductive health. We already studied about reproduction in organism, chapter number 1, then reproduction in angiosperm, and then human reproduction. So this is the very important, we can say, social aspect of this chapter is reproductive health. So there are two words, one is reproductive and second is health. If we talk about only health, so what do you mean by health? If you talk about two terms, one is health and second is disease free. Like right now I can say I am disease free, there is no disease in my body. But if we talk about health, then according to WHO, that means health means the well-being in social, physical and mental aspects according to WHO. यानी कि फिजिकल से भी, मेंटल से भी और सोशल एस्पेक्ट से भी जो क्या हो, बिल्कुल ठीक हो, दैट इज नोन एज हेल्थ. इन माय व्यूज आई थिंक देयर इज नो वन इज हेल्दी इन दिस एंटायर वर्ल्ड. अब आप इसी कोरोना का केस देख लो कि जो गाइडलाइंस है, वी आर नॉट फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस. कैसे लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दे आर नॉट सोशली और वी कैन से मेंटली वो हेल्दी नहीं है. फिजिकली हेल्दी होने से कुछ नहीं होता. तो अगर इसी के साथ मैं एक और वर्ड ऐड कर दूं, दैट इज रिप्रोडक्टिव. तो दैट मीन्स वी कैन से हेल्थ रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव पार्ट और वी कैन से रिप्रोडक्शन. तो दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. नाउ वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दैट इज ब्रॉड पर्सपेक्टिव. इट इंक्लूड इमोशनल, सोशल aspect of the reproduction. That means in reproductive health the most important thing is emotional and social effect, not only physical. Okay, according to WHO, reproductive health mean total well-being in all aspect. कौन कौन सी है? एक तो physically वो, that means physically वो able हो to reproduce, then emotionally, after that behavioral और we can say social. अगर इन चारों एस्पेक्ट में कोई मान लिया फिट है, तो वी कैन से कि दैट पर्सन, दैट मेल और दैट फीमेल इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी. नॉट ओनली फिजिकल, इमोशनल भी हो, बिहेवियरल भी हो और सोशल भी हो. लाइक फिजिकल, दैट मीन्स एनी और मेल और फीमेल इज एबल टू रिप्रोड्यूस. अगर बात करूँ इमोशनली की, दैट मीन्स हाउ वी आर कनेक्टेड है, हाउ मेल एंड फीमेल that means connected with each other. If we talk about behavior, that means how is the behavior for the different sex, or we can say for the sex is the, that is known as behavior, or we can say social. Social means, social में आएगा कि if we talk about that means equality, or if we talk about the respect of gender, okay, or any kind of gender, is maybe third gender, transgender, is the male or female. तो उसमें जो सोशली जो हमारे बीच में जो क्या है कनेक्शन है, that is include the social aspect. So if we talk about, like if we talk about a well-being society or a better society, तो जहाँ पर that means people are interactive with each other in all aspect, then we can say this society is a healthy society. So society with people having physically and functionally normal emotional behavioral interaction. अगर उनमें normal और emotional behavioral interaction है among them in all aspect related to the sex, that means, or we can say all sex related aspect, तो हम कह सकते हैं कि that is reproductively, और we can say reproductive health. that means कोई सोसाइटी है, उस सोसाइटी में आई एम अब्यूजिंग टू समवन, लाइक जैसे चाइल्ड बुलिंग का केस आजकल बहुत ज़्यादा है, या हम सोशल मीडिया पे ट्रोल करने की बात करें, या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे भद्दे कमेंट करना, या किसी को ट्रोल करना, या किसी के लिए कुछ कहना, या किसी को पर्सनल, या किसी के सेक्स पे, किसी बॉडी फिगर पे, या किसी पे ऐसा कहना, तो वो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वी कैन से रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और वी कैन से आई एम नॉट रिप्रोडक्टिवली हेल्दी. तो दैट मीन्स ऑल द एस्पेक्ट आई हैव टू इंक्लूड इन दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ. देन वी कैन से व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट. तो टू वी कैन से टू कंस्ट्रक्ट ए better society or healthy society, that reproductive health is also very important. तो इंडिया एक ऐसा देश है, जब भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बात हुई तो सबसे पहले इंडिया ने जो इनिशिएटिव लेने वाले देश थे, उनमें से इंडिया क्या था, एक था वी आर हैविंग डिफरेंट प्लान्स. लाइक हमारे स्कूल के अंदर क्या है कि काउंसलिंग यूनिट है, स्कूलों में सेक्स एजुकेशन है, चाहे वो प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया, कितने भी सारे मीडिया हैं जिनसे हम बार बार
जो इन पे है काम कर रहे हैं, या हम जेंडर इक्वलिटी पे काम कर रहे हैं, या हम फीमेल फिटिसाइड पे काम कर रहे हैं, या हम डोगरी पे काम कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे एस्पेक्ट हैं वो क्या है, वो हमारे लिए क्या है, सिग्निफिकेंट है फॉर ए बेटर सोसाइटी। तो इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, वो एक उन कंट्रीज में से है जिसने सबसे पहले इन पे क्या लिया, इनिशिएटिव लिया। दैट मीन्स इंडिया इज टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल। तो दैट मीन्स बाकी जो सोशल चीजें हैं उसमें एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी ऐड करके इंडिया ने बाकी देशों की तरह सबसे पहले इनिशिएटिव लिया। नाउ वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स, ओके, फॉर दिस टू मेक द person healthy or to make the society healthy in the reproductive way. So we have to discuss a plan, that is a family planning. So government of India has started a program in 1951 that is known as family planning. अब उस family planning program में कि कितने बच्चे पैदा करने हैं, उनका ख्याल कैसे रखना है, या व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ वी कैन से टू प्रोटेक्ट अनवांटेड प्रेगनेंसीज और अबाउट द डिफरेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो सारे उसके अंदर आते थे। तो दैट मीन्स ये कवर करता था कि वाइड रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरिया, ओके। आफ्टर दैट इस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया आरसीएच में, एंड नाउ दिस इज नोन एज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव साथ इसमें क्या ऐड कर दिया, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम कर दिया। तो दैट मीन्स हाउ टू क्रिएट द अवेयरनेस, तो दैट मीन डिफरेंट डिफरेंट वेज टू क्रिएट द अवेयरनेस, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हो। तो दैट मीन बाय द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल मीडियम, चाहे वो टीवी में दिखाते हैं या सोशल मीडिया पे आता है या रेडियो में दिखाते हैं, और वी कैन से बाय द प्रिंट मीडिया थ्रू मैगजीन्स, थ्रू न्यूज़पेपर, और थ्रू वी कैन से स्लोगन्स एंड अदर थिंग्स। So that means these are the ways by government agency as well as non-government agencies like NGO, like a school also creating the awareness about the reproductive health in student। तो वो क्या हो गया, नॉन गवर्नमेंटल हो गया एक टाइप का। तो हम ऑडियो विजुअल भी करते हैं, प्रिंट मीडिया भी करते हैं, हम पोस्टर बनाते हैं, या एनएसएस का कैंप लगता है। तो दीज आर द डिफरेंट वेज टू स्प्रेड द अवेयरनेस, ओके। सो अब इस आरसीएच की बात करें तो इनमें दो ग्रुप ऐसे हैं इसके जिनमें सबसे ज्यादा जिन पे फोकस होता है। फर्स्ट ग्रुप दैट इज एडोलसेंस एज ग्रुप, like you are the students like of class 12 और फर्स्ट ईयर और क्लास 10, आफ्टर क्लास 10 जो भी स्टूडेंट है और 9th-10th की जितनी भी है, तो दैट मीन्स उनको किसके बारे में अवेयर करवाना, दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, ताकि वो क्या करें, दे लीड टू ए रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ। इन योर एज, जो ये एज है आपकी, इसमें सबसे ज्यादा बच्चा डाइवर्ट होता है इनटू डिफरेंट डिफरेंट वी कैन से डिफरेंट वेज ऑफ वी कैन से रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट, उन पे ज्यादा थोड़ा सा ईगरनेस दिखाता है या थोड़ा सा उसमें ज्यादा डाइवर्ट होता है। तो दैट मीन्स वी इज आर ड्यूटी टू क्रिएट द अवेयरनेस, विल नॉट टू डाइवर्ट यू, ओके। तो दिस इज नथिंग अबाउट, वक्त के साथ सारी चीजें होती है। तो दैट मीन फर्स्ट ट्राई टू लर्न द थिंग्स, लर्न द वी कैन से कॉन्सेप्ट के व्हाई दीज थिंग्स आर देयर। हर चीज के लिए कोई लाइफ है, कोई टाइम है, दैट मीन्स वो सारी चीजें एक साथ चलती है, ओके। सो दैट मीन्स एक तो एडोलसेंट एज ग्रुप हो गया, एंड सेकेंड ग्रुप है दैट इज फर्टाइल कपल, और वी कैन से द पर्सन विद मैरिज एज ग्रुप। तो उनको लोगों को क्या भी अवेयरनेस दिलानी, जैसे मान लीजिए कोई फर्टाइल कपल है, न्यूली मैरिड कपल है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो दैट मीन्स व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स आर अवेलेबल है उनके बारे में। देन हाउ टू केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, उसके बारे में जानकारी। देन व्हाट अबाउट वी कैन से द केयर ऑफ पोस्ट नेटल मदर एंड बेबी, आफ्टर डिलीवरी वो बच्चे की और मदर की केयर कैसे करें फैमिली में, उसके बारे में जानकारी। जैसे आफ्टर दैट वी कैन सी इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। आपने कहीं ऐड में और देखा होगा कि 0 से 6 मंथ के बच्चे को क्या करवाएं, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। एंड वी हैव स्टडीड इन ए पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, दैट मीन्स IgA टाइप की होती है, एंटीबॉडी होती है, एंड फर्स्ट मिल्क इज नोन एज कोलेस्ट्रॉल, ओके। तो ये IgA टाइप की एंटीबॉडी होती है, एंड दैट वी कैन से डेवलप द इम्यूनिटी इन द न्यूली बॉर्न बेबी। तो दिस इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ
ब्रेस्ट फीडिंग, एंड इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ गर्ल्स एंड वी कैन से बॉयज, और वी कैन से गर्ल और बॉय, इक्वल अपॉर्चुनिटी हियर। अब समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कोई फेमिनिस्ट बोलता है अपने आप को, कोई कुछ बोलता है कि वी वांट अपॉर्चुनिटी और वी वांट द इक्वलिटी। इक्वलिटी यहाँ दैट मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स, वी कैन से बॉय और गर्ल, दे आर नेवर इक्वल। ना तो साइंटिफिकली दे आर नेवर इक्वल। अगर एक ही होते तो फिर दो की जरूरत क्या होती? तो साइंटिफिकली दे आर नॉट इक्वल। दोनों का जो पोटेंशियल है, जो वी कैन से फिजिकल स्टेमिना है, दे आर डिफरेंट डिफरेंट। दोनों की थिंकिंग एबिलिटी अलग है, दोनों की सोच अलग है, दोनों की पहचान अलग है, दोनों के इंटरेस्ट अलग है, दे आर नॉट इक्वल। हियर व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी? इक्वलिटी मीन कि सबको बराबर के जो क्या है अपॉर्चुनिटी मिले, चांसेस मिले, जॉब के, रिस्पेक्ट के, काम के, पढ़ाई के, ये सारी चीजें हैं। तो जो इक्वलिटी मीन है, जो अपॉर्चुनिटी मीन है, वो अपॉर्चुनिटी किस में हो? जॉब में हो। जॉब में कहीं पर ऐसा डिस्क्रिमिनेट ना हो बॉय और गर्ल के साथ, कहीं पर रिस्पेक्ट में डिस्क्रिमिनेट ना हो, यहाँ गर्ल्स के साथ किसी तरह की छेड़खानी होती तो वैसा ना हो। तो दिस मीन द इक्वलिटी। ओके, तो दैट मीन्स अदरवाइज बॉयज एंड गर्ल्स आर साइंटिफिकली और बायोलॉजिकली नॉट सिमिलर, दे आर बहुत डिफरेंट। बट हियर इक्वलिटी मीन्स दैट मीन्स इक्वलिटी इन देयर अपॉर्चुनिटीज। ऐसा ना हो कि लड़का है तो उसको काम नहीं करने दिया जाए, या लड़की है तो ऐसा काम नहीं करने दिया जाए, ऐसा नहीं हो। वो सबके लिए बराबर हो। लड़कियां भी रात को घूमे, लड़कियां भी बाहर जाए, लड़कियां भी अपनी मर्जी से पढ़े, लड़कियां भी बाहर घूमे, कहीं घूमे, सिनेमा देखा जाए, कुछ करे, तो वो एक अपॉर्चुनिटी, वो इक्वलिटी है। जॉब में इक्वलिटी हो, एजुकेशन में इक्वलिटी हो, तो वो सारी चीजें। दैट मीन्स okay, I am also favoring the equality of gender. That means there should be no discrimination between boy and girl. So equal opportunity for both boys and girl. So this is about some journal of, we can say, reproductive health. Now some more details are there, we have to discuss. So if we want to successful implementation of reproductive health program, then there are some requirement that we have to fulfill, then we can make a healthy nation. So we can say we want strong infrastructure facilities. You know what is the conditions of hospital in India and the other facilities in India. अगर आप सरकारी स्कूलों में जाके देखो तो अच्छे वॉशरूम भी नहीं है। ओके, या अगर गांव में हॉस्पिटल है तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। दैट मीन्स वी ऑल्सो require the strong infrastructure facilities and also require professional expertise. That means we require the, we can say, expert on the specific subject, or we can say specific area. And also we want material support. That means without the support we cannot we can say acquire the reproductive healthy society. After that, there are some other aspects that will also be required, that we want to require ban on amniocentesis. What is this amniocentesis? इस amniocentesis में क्या होता है? From the at the time the developing baby होता है uterus से, that means in, we can say placenta, inside there is a fluid that is known as amniotic fluid. उस amniotic fluid में क्या होता है कि some cells are floating in amniotic fluid, और इन सेल को बाद में तो क्या करते हैं, साइटोलॉजिकल स्टडी करते हैं। इन साइटोलॉजिकल स्टडी मेनली वी स्टडी द क्रोमोसोम नंबर एंड पैटर्न। तो उस क्रोमोसोम नंबर और पैटर्न से हमें ये पता चल जाता है कि व्हाट इज द सेक्स ऑफ fetus. So that means due to this, in some cases there is a chances of female feticide, but this is used for to detect the any type of genetic disorder. We will study about the different type of chromosomal disorder in chapter number 5. तो ये है तो काम का, that means if any type of abnormality is there or any type of disease is there, then we can detect. बट आल्सो इसके साथ क्या होता है कि क्रोमोसोम स्टडी से हमें सेक्स पता चल जाता है, इधर इज मेल और फीमेल। अगर फीमेल बेबी गर्ल है तो उसे फीमेल फिटिसाइड की केस है वो बढ़ते हैं। एंड दिस इज द ह्यूज प्रॉब्लम इन इंडिया एंड स्पेशली इन हरियाणा, कि देयर आर वी कैन से द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल, उसमें एक बीच में क्या है, गैप है। ओके, अब तो कुछ कम हुआ है,
that means amniocentesis. So we required ban on amniocentesis, and also we need to massive child immunization. That means at huge level we required child immunization. Now in India we have a well developed immunization system. जैसे ही बच्चा जन्म लेता है MMR के और के पोलियो के वैक्सीन उसको शुरू से ही लगनी शुरू हो जाती है. हमारे स्कूल में भी थोड़े दिन पहले हमने MMR के इंजेक्शन लगवाए थे बच्चों को. तो दैट मीन्स दीज आर द वी कैन से डिफरेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमें यूज लेवल पे करना पड़ेगा. देन वी कैन एक्वायर दिस पोजीशन. ओके, सो if we want to improve reproductive health of a society, that means suppose I am living in a society and I am saying that this society is reproductively healthy, तो उसका मतलब क्या है कि that means all the society member are well we can say well educated with the different birth control method, or we can say family planning method. They do not abuse each other, they respect each other, and the females are, we can say, well educated with the menstrual, we can say menstrual things, or we can say the periods and all the things. So we can say these are the then we can say the society is a reproductively healthy society. Okay, so these are the different aspects by which we can move towards the reproductively healthy society. Now we have to discuss some of the we can say birth control method. What are they, why they required, how they do work. Now the main part of this chapter is different contraceptive methods. What do you mean by contraceptive method? That means the any material or any method or anything which do not, we can say, permit to meet sperm and egg. यानी कि जो फर्टिलाइजेशन ना होने दे कोई ऐसा डिवाइस, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा केमिकल या कोई ऐसा मेथड जिससे क्या ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो. दैट मीन्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी. इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं. वी हैव स्टडीड डिटेल्स ऑफ दैट मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन, स्पर्म, एग. तो ऐसे कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जिनसे हम दोनों को आपस में ना मिलने दें? तो वो आप सोच भी सकते हो. तो देयर इज ए क्वेश्चन कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कैसी होनी चाहिए. दैट मीन्स देयर इज ए वी कैन से ए न्यूली मैरिड कपल और ए कपल है एंड दे हैव टू वी कैन से दे हैव टू सेक्स विद ईच अदर. तो ऐसा क्या मेथड हो कि जिससे वो फर्टाइल, दैट मीन्स प्रेगनेंसी ना हो. तो दैट मीन्स दे हैव टू अवॉइड द प्रेगनेंसी. तो उसके लिए दे शुड गो फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. अब कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करें या वो कैसा हो, ये कैसे होगा? तो दैट मीन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन से हो सकते हैं या उसमें क्या होना चाहिए कि इट शुड बी यूजर फ्रेंडली. यूजर फ्रेंडली हो, दैट मीन्स उसको यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इधर यूज्ड बाय मेल और बाय फीमेल. सेकंड, इजीली अवेलेबल. वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे किसी मार्केट में या किसी घर में, किसी भी वी कैन से जो प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं गांव में उनमें. थर्ड वन इज इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी इफेक्टिव. लाइक समवन इज यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड दैट इज नॉट इफेक्टिव, तो प्रेगनेंसी के चांसेस है. एंड सेकंड वन इज रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मीन ऐसा है कि एक बार अगर उसको किसी भी तरह से ले और यूज करें तो दैट शुड बी टेम्परेरी. तो दैट मीन्स इट अवॉइड प्रेगनेंसी टेम्परेरी, नॉट परमानेंट. कैसा ना हो कि परमानेंट ही ऐसा हो जाए. आफ्टर दैट विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट. ये भी बहुत जरूरी है कि उसका जो साइड इफेक्ट यहाँ तो हो ही ना और यहाँ बिल्कुल क्या हो, कम हो. एंड नेक्स्ट इज और वी कैन से लास्ट शुड नॉट बी इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर और एक्ट. तो अगर सेक्सुअल डिजायर और एक्ट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स विद द पार्टनर्स. अगर ऐसा हो तो भी ये काम की नहीं है. सो देयर आर डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर अवेलेबल, लाइक वी कैन से नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड. देन सेकंड वन इज बैरियर्स, थर्ड वन इज IUDs. आफ्टर दैट oral contraceptives, then injectables, then implants, and then surgical method. The first is natural, second is barrier, third is IUDs, fourth is oral contraceptive, fifth is injectable, sixth is implants, and seventh is a surgical method.
अब ये जितने भी 7 है ये इनमें से कोई ना कोई कैरेक्टर है। अगर किसी एक में ये होते सारे कैरेक्टर तो बाकियों की जरूरत नहीं पड़ती। दैट मीन समवन इज बेटर फॉर 1 or 2 we can say type of we can say characters and 1 or 2 for others। so that means हर एक की अपनी अपनी स्पेसिफिसिटी है, अपनी अपनी क्या है, इनकी स्पेसिफिसिटी है और अपनी अपनी क्या है, इनकी लिमिटेशंस है। so that we will discuss in detail in next lecture। okay, so this is about the contraceptive method। तो कैसा होना चाहिए, this is the very important question। user friendly, easily available, effective and reversible with no or least side effect, should not be interfere with sexual desire। तो मेथड कौन से हैं, नेचुरल और ट्रेडिशनल, बैरियर, आईयूडीज, ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। ओके, थैंक यू।